So function, what is function? Yes. Function. Whiteboard is visible? Yes, sir. So we were talking about function. So what was the definition? If you have two sets A and B, suppose two non-empty sets. So if you have a map F, so it is non-empty. You have some elements here, you have some elements here. So this map is such that, yeah, you can say this is a function. It is such that each element in A has a unique image in B. Then this F is called a map or a function. So you have some rule between these A and B. Some law you can say between A and B. What? That each element has a unique image in B. That is called a function. Each element in A has a unique image in B. So what is this called? A is called domain and B is called कोडोमेन, है ना? ये सब आप एडवांस कैलकुलस तो पढ़ के आए हैं आप पीछे, उसमें भी आपने पढ़ा है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए इनफैक्ट यू हैव स्टडीज. इट इज डोमेन कोडोमेन एंड दिस द एलिमेंट्स व्हिच आर मैप्ड इन B, this is called, what is called? Range, है ना? This is called range of F. Range of F. So range of F is a subset of B. कोडोमेन का सबसेट होगा. तो रेंज में वो एलिमेंट आएंगे जो मैप होके आएंगे. तो रेंज ऑफ F is a subset of कोडोमेन B. It may be proper subset or may be equal also. ये सब चीजें मालूम है. I will be using all these things very frequently. So you must know all these concepts, domain, codomain, and all these things. Okay. So this is a map. Like for example, if you have fx is equal to suppose x square. So this is a map. If you will see here, an f if I am taking from R to R. Suppose आपका f है, it is from R to R, set of real numbers to real numbers. So what is the map? Every element will map to x square. So you know what is this fx is equal to x square? What is this? इसे अगर प्लॉट करें क्या आएगा? ये पैराबोला. पैराबोला. कैसा पैराबोला? सर अपवर्ड. अपवर्ड पैराबोला है ना, बिकॉज दिस इज योर y. fx को मैं y कह सकता हूँ, y is equal to x square. So it is an upward parabola whose vertex is at the origin. This is the function. This is a function. You can see codomain is R, domain is R. So I can take any real number. अगर 0 लिया तो it will be going to 0. If I am taking 1, so it will be 1. If I am taking 1 by 2, it will be 1 by 4. If I am taking 1 by 3, it will be 1 by 9. I am taking F4, it will be 16. So every element has a unique image. है ना? F2 is 4. F minus 2 is how much? 4. तो यूनिक इमेज है. इज इट अ यूनिक इमेज? टू की इमेज ही 4 है, माइनस 2 की भी. तो क्या ये यूनिक इमेज कहेंगे इसे? यस सर. है इमेज यूनिक है ना. यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है. यस सर, इमेज तो यूनिक है. हाँ, कि अगर आपके पास यहाँ पर 2 था और -2 है तो इमेज तो यूनिक है ना. 2 की इमेज भी 4 है और -2 की भी 4 है, लेकिन इमेज तो यूनिक है ना. यू कैन हैव मैप लाइक दिस. ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर आपके पास 2 होता और यहाँ पर इमेज आपकी इसकी 2 हो जाती.
है ना, अगर ऐसा होगा then it is not a function. Okay, it is not a function. यहाँ इमेज यूनिक नहीं, लेकिन it is a unique image, so it is a function. Okay, Yes, sir. now tell me one thing, it is 1 1 or not? No, sir. No, sir. Hello, so it is 1 1 or not? No, Two sir. things are there. 1 1 नहीं है, क्यों? -2 और 2 का इमेज एक ही है। हाँ दो वाली हाँ, you have an element which has, you have two element which has image. In fact, you have all the numbers which has same images, है ना? हर नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव सेम आए because it is x square. So this map is not 1 1. तो किसी भी when you are defining a function, there are two important things. One thing is domain, second thing is codomain or range also, and then one-oneness and onto-ness. These are very important concepts in vector space. इसी पे base we will be defining range, kernel and so many things. So one-oneness, onto-ness is also very important. तो one-oneness के लिए क्या होगा? If you will check a map is 1 1 1 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंजेक्टिव, है ना? इंजेक्टिव. Yes. So a map is 1. मैप या फंक्शन एक ही चीज है ना? is 1 1 if, इसको अगर आपको one thing is that you can see here if every element has a unique image, and if you want to show it mathematically, तो कैसे शो करेंगे? How you will show it? Yes. x1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2. Yes. fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2. अगर mathematically I want to show that a map is 1 1, I will show this. और इसको ये तो डायरेक्ट है, और I can take indirect also. ये भी कह सकता हूँ x1 is not equal to x2 implies that fx1 is not equal to fx2, है ना? Both are same statement. If you can write in this way, and इसको अगर negate करके लिखेंगे तो इस negate, you can write in this way. Both are same. So if you want to show a map is 1 1, mathematically you have to show like this. और graphically अगर show करना है तो graphically how you will show? अगर plane curve है, just draw a horizontal line, है ना? Parallel to x-axis. तो every line cuts the curve at exactly one point. अगर exactly one point पे cut कर रही है, then function is 1 1. Otherwise it is not 1 1. तो यहाँ पर देखिए, हर लाइन आपकी इनफैक्ट कटिंग दिस एट 2 पॉइंट्स. तो 2 पॉइंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास जो इमेज आ रही है 2 और -2 की सेम इमेज आ रही है, क्योंकि ये इमेज है ना, दिस इज द इमेज. सो ग्राफिकली यू कैन सी बाय ड्राइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, if every line cuts the curve at exactly one point. तो यहाँ पर नहीं कर रही है तो it is not 1 1. You can see here, अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा ले लूं, मान लीजिए like this, ये है ना, fx is equal to ex का ग्राफ है ये. ex का तो होता है x0 पे 1. Now if you draw a line, so you know every line cuts the graph at exactly 1 point. So this is a 1 1, है ना? ये जो ग्राफ है दिख रहा है. तो if you have given a graph, तो by this you can check. और अगर फंक्शन गिवन है आपको in this way, you can check by this. So this is 1 1. This is not 1 1. Okay. Next thing is onto-ness के लिए I need a definition. Free image. Free image क्या होती है? Free image. So definition: if you have a function, let f is a function from a to b. This be a function.
then the PD image of y, the PD image of y कहाँ बिलोंग करेगा? कोडोमेन में, क्योंकि इमेज होगी एक एलिमेंट्स की. PD image you will take from the elements of B. The PD image of y belongs to B is the set. So PD image में एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? A से, है ना? X belongs to A such that fx is equal to y. Means what? If you have a set A, a set B, and you have a function f between A to B, suppose this is a function. So if you have here points, so here you have suppose x, here you have images, this is your y. So what is happening? That for every y there is a PD image. PD image का मतलब क्या हुआ कि that this y must be a image of some element x from 2A. तो इसे सेट में कैसे लिखेंगे कि it's a collection of x belongs to A. PD image में एलिमेंट्स आएंगे A के, such that fx is equal to y. इसकी जो मैप है वो ये आ रहा हूं. ओके, जैसे यहां पर अगर आप देखें इस फंक्शन में fx is equal to x स्क्वायर, fx is equal to x स्क्वायर, है ना? ये मैप आपका कहां से कहां तक है? रियल नंबर से रियल नंबर पे, हर रियल नंबर को रियल पे मैप करना है. तो यहाँ पर अगर मैं PD इमेज देखना चाहूँ 4 की, व्हाट इज द PD इमेज ऑफ 4? बताइए. 2 and minus 2. 2 and minus, यस. तो यू नो हर एलिमेंट की यहाँ पर 2 इमेजेस आएंगी. व्हाट इज PD इमेज ऑफ कोई नंबर ऐसा है इसकी PD इमेज नहीं होगी? बताइए. Negative numbers. नेगेटिव नंबर, सही है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है. तो मैंने नेगेटिव इमेज ले ली -4 की. क्या आएगा PD इमेज ऑफ -4? 5 है 5 5. 5 का मतलब एम्प्टी सेट, है ना? कि -4 की कोई PD इमेज ही नहीं है. -4 is not the image. If somebody asking your PD image, it means you have to see whether it is the image of some element or not. That is the PD image. तो -4 की कोई क्या नाम है? There is no image, there is no element in domain whose image is -4, है ना? तो अगर यहाँ पर आप प्लॉट करेंगे तो here you have real number है, here you have all the numbers, but in the image set, that is the point, है ना? कि इमेज सेट जो है, इस इमेज सेट में आपके पास सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. इसको अगर मैं R+ से शो कर दूं तो यू हैव R+, है ना? तो इमेज सेट हियर R+, कोडोमेन इज R, कोडोमेन पूरा R है. एंड एज आई टोल्ड यू कि इमेज सेट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. तो यहाँ पर जो इमेज सेट है ये इस पर्टिकुलर मैप में, दिस इमेज सेट is a, जो कि R+ है, is a proper subset of codomain. कोडोमेन क्या है आपका? होल R. तो यहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट है ना? इट इज नॉट इक्वल. ये आपको मिल गया -4 माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर ले ले, इट इज नॉट इन द इमेज सेट, है ना? यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा है क्या डोमेन में जिसकी इमेज नहीं हो? इज इट पॉसिबल? कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है whose image is not in B? No, sir. क्यों नहीं हो सकता? If it will Because happen, f is defined. हाँ, because f is a function. Definition कह रही है. फंक्शन का मतलब ये है कि every element has a unique image. हर एलिमेंट की कोई यूनिक इमेज जरूर होगी. अगर ऐसा एलिमेंट कोई यहाँ होता जिसकी इमेज नहीं होती तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा. इट विल फेल द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, है ना? तो यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं, और आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे x में मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं उसकी इमेज जरूर यहाँ पर आएगी, है ना? हमने यहाँ पे लिया था, देखिए 0 1 फ्रैक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव हर एलिमेंट की इमेज थी. तो
every element has an image of course by the definition of function. तो डोमेन में तो हर एलिमेंट, every element will be having a image, having an image, but it is possible that some elements are in the codomain which does not have a pre-image in A. अब वही मैप में आपके पास क्या हो जाता है, यही डेफिनेशन भी है आपकी ऑन टू नेस की, ऑन टू मैप, इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव में क्या होगा, a map is onto if, in fact, if and only if range of f is equal to कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा तो वो मैप आपका क्या होगा, ऑन टू मैप होगा। तो इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, बताइए। Every element of B has pre-image. यस, इसका मतलब यही है। जब रेंज कोडोमेन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये R प्लस आपका पूरा R हो जाएगा। तो इफ इट इज होल R, तो इन दैट केस एवरी एलिमेंट इन B हैज अ प्री इमेज इन A। ये भी डेफिनेशन है इसी की। दैट मींस ये कहते हैं आप या ये कहते हैं, बोथ द डेफिनेशंस आर इक्विवेलेंट। इफ एवरी एलिमेंट इन B हैज अ प्री इमेज इन A। इसी मैप को अगर मैं fx इजिकल टू x कर दूं, सेम मैप को, और आपका डोमेन कोडोमेन सेम है, अब बताइए, अब ये क्या ऑन टू है, Yes, sir. और 1 1 है, Yes, sir. Yes, sir. ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना। तो हमने यहाँ पर फंक्शन दूसरा लिया तो 1 1 ऑन टू हो गया। यहाँ पर या तो ना तो 1 1 था ना ऑन टू था, मैं चेक करा 1 1 नहीं था क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, और ऑन टू भी नहीं था। सो fx इक्वल टू x स्क्वायर इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, है ना। इस फंक्शन को क्या कहते हैं जो मैंने ये लिखा है अभी, इसका कुछ नाम होता है? Bijective. नहीं, वो तो बाइजेक्टिव की तो बात अभी करेंगे। इस फंक्शन का नाम क्या है? बाइजेक्टिव तो इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्यों है? हर एलिमेंट की इमेज वही है जो एलिमेंट है, f1 की इमेज 1, f2 की 2, 0 की 0, है ना। तो ये एज ए आइडेंटिटी वर्क कर रहा है। सो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू x, ठीक है। क्यों? एवरी एलिमेंट हैज द सेम इमेज, f1 1, f0 0, f half half। so this is called identity function, keep it mind, ठीक है। तो identity function is always 1 1 on 2, or if a function is 1 1 on 2 it is called bijective। जो भी आप में से कोई बोल रहा था, क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ये मैं रिकॉल करा रहा हूँ इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग तो यू कैन अंडरस्टैंड। और अगर बाइजेक्टिव होता है तो उस केस में क्या होता है, इसका क्या एग्जिस्ट करेगा? Inverse. इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वेरी गुड, है ना। इट विल हैविंग एन इनवर्स, यानी कि मैं इसका इनवर्स फंक्शन भी निकाल सकता हूँ, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स अभी करेंगे आगे, तो वहां पर इनका बहुत इस्तेमाल है कि विच फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन है तो इट हैज सेवरल प्रॉपर्टीज एंड it will be coming a special algebraic structure। तो ये आपका हो गया डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ऑनटूनेस और वन वननेस, है ना। नाउ इट इज अंडरस्टूड, इट इज क्लियर हाउ टू चेक, या कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन? नहीं है? क्यों भाई? No, sir. चलो गुड। सो नेक्स्ट थिंग वी हैव नाउ, आई का डेफिनेशन और अच्छा, देन वी हैव 1 to 1 correspondence।
यहाँ पे ये आप एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं जो अभी आपने बताया था बाइजेक्टिव वाला। अ मैप इज 1 1 on 2 1 1 and on 2, यानी दोनों चीजें जब दोनों कंबाइंड हो जाएंगी तो इट विल बी कॉल्ड बाइजेक्टिव। इफ एंड ओनली इफ, जब मैं इफ एंड ओनली इफ लिखता हूँ तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, बोथ साइडेड ट्रू, है ना। अ मैप इज बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन इनवर्स। अगर इनवर्स है तो 1 1 on 2 होगा, 1 1 on 2 है तो इनवर्स होगा। तो अगर आपका f a to b 1 1 on 2 है तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, तो आपका एक इनवर्स मैप बन जाएगा फ्रॉम b to a, है ना। ये आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इसमें भी फंक्शन की प्रॉपर्टी होंगी सारी। एवरी एलिमेंट इन ए b विल बी हैविंग अ यूनिक इमेज इन a, और ये 1 1 भी होगा, on 2 भी होगा। तो इफ f इज 1 1 on 2, इनवर्स इज आल्सो 1 1 on 2, है ना। ये एक रिजल्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव 1 to 1 correspondence। 1 1 correspondence, two sets are sets if you have two sets A and B, they are said to be in in 1 to 1 correspondence, या 1 1 में ऐसे लिख दूं, 1 1 correspondence if there exist, ये there exist का symbol है, you must be knowing this, there exist a map f a to b such that short में ऐसे लिख दूंगा, such that f is bijective। ओके, तो अगर आपको चेक करना है कि टू सेट्स में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ कि यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू डिस्कवर, एक ऐसा मैप ढूंढ के लाना पड़ेगा जो बाइजेक्टिव हो। अगर आपको एक भी ऐसा मैप मिल गया इन दो सेट के बीच में, तो वो सेट आपके आपस में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस रखेंगे। ठीक है, Yes, sir. अब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में इट इज नॉट से कि इक्वल होंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ए एक सेट ले लूं, ए बी सी, ठीक है, और बी ले लिया हमने 1 2 3, तो मुझे एक मैप ऐसा मैं हमेशा डिफाइन कर सकता हूं कि ए को 1 पे मैप कर दूं, बी को 2 पे, सी को 3 पे, है ना। एफ ए को इमेज 1 ले लूं, एफ बी की 2, एफ सी की 3, ऐसा मैप हम बन सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पे इनके बीच में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। अब क्योंकि ये फाइनाइट सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स का मतलब जिसमें आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर फाइनाइट है ना, ये सेट फाइनाइट कराएगा, इसकी कार्डिनलिटी 3 है। तो दे हैव, अगर फाइनाइट सेट है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। लेकिन अगर मैं एक मैप बनाऊं, मान लीजिए अब मैं एक मैप बना रहा हूं इनफाइनाइट से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 2, और इधर ले लेते हैं आपके सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है बताओ जरा, 1 2 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट। ठीक है, और ये मैंने इवन पॉजिटिव नंबर्स लिए, तो ई प्लस क्या होता है, क्या होगा 2, 0 भी आता है, 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक है, या प्लस से शुरू करा है तो मैंने 0 नहीं लेना, चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है तो 2, आई स्टार्टिंग विथ 2, और यहाँ पर डोमेन ये है। अब क्या इनके बीच में मैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल,
क्या कैन आई फाइंड अ मैप विच इज बाइजेक्टिव? देखो यहाँ पर ये मैप बाइजेक्टिव था आपका, ए की इमेज 1 थी, बी की 2 थी, सी की 3 थी, और हर एक 1 के लिए हर एलिमेंट की प्री इमेज भी थी। तो यहाँ पर ये मैप बाइजेक्टिव था, इसलिए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस थी, है ना। अगर यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट कर देता, यहाँ 4 कर देता, तो क्या ये मैप बाइजेक्टिव हो जाता? सपोज यहाँ पर एलिमेंट अगर मैं 4 कर देता, तो क्या स्टिल दिस मैप विल बी अ बाइजेक्टिव? No, sir. आपको कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा लेना पड़ता जो क्या करता, या तो एक एलिमेंट यहाँ पे रह जाता, या आपको ऐसा कुछ करना पड़ता कि वो हर एलिमेंट की इमेज चाहिए थी आपकी, तो हमेशा एक एलिमेंट यहाँ पे आपका रह जाता। तो क्या होता अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट बढ़ा देता, तो क्या होता? ऑन टू नेस नहीं रहती, है ना। और अगर इधर बढ़ाता तो क्या होता? तो 1 1 नेस नहीं रहती। भाई अगर मैं ABCD ले लेता, तो आप क्या करते? A1 B2 C3, डी को कहाँ लेके आते आप? अगर यहाँ पे 3 रहते तो डी को आपको किसी एक में लेना पड़ता, है ना। तो अगर फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट में 1 to 1 नेस करस्पॉन्डेंस जब ही होगी जब दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तभी दे विल बी हैविंग 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, तभी बाइजेक्टिव होंगे। ये बात समझ में आ रही है नहीं? ये बताइए। Yes, sir. है ना, क्योंकि अगर आप कोडोमेन में एलिमेंट बढ़ाएंगे तो दैट मैप विल नॉट ऑन टू, और अगर आप डोमेन में एलिमेंट बढ़ाएंगे तो दैट मैप विल नॉट बी 1 1 1। तो फाइनाइट सेट की बात तो जब ही होगी करस्पॉन्डेंस की जब दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं बात कर रहा हूँ इनफाइनाइट की। ये सेट इनफाइनाइट है, आपको मालूम है यू कैन नॉट राइट कि भाई लास्ट एलिमेंट एन एलिमेंट क्या है इसका, आई कैन नॉट राइट एन एलिमेंट, है ना। और ये भी इनफाइनाइट है। अब आपको मालूम है, अगर आप यहाँ देखें तो यू कैन सी कि जो E प्लस है ये आपका सबसेट है एन का। देखो इसी से तो आ रहा है। Yes, sir. अब मैं जानना चाह रहा हूँ क्या ये आपस में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस रखेंगे? क्या आपको एक ऐसा मैप मिल जाएगा विच इज बाइजेक्टिव? बताइए। एक मैप मैं सोचता हूँ, चलो मान लो मैंने लिया fx इज इक्वल टू 2x, एक मैंने मैप ये लिखा। अब इसमें अगर देखो, पहले तो ये बताओ कि ये फंक्शन है क्या fx इज इक्वल टू 2x? ये Yes, आपका sir. सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और ये आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर है, 2 4 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। मैंने एक मैप बताया, पहले मैंने सोचा कि एक सोचते हैं fx इज इक्वल टू 2x। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या एवरी एलिमेंट इज मैप टू दिस, वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो बताइए फंक्शन है, हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी आपको, Yes, sir. तो फंक्शन तो है Yes, sir. है ना। अब क्या चेक करना है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के लिए? बाइजेक्टिव। बताओ बाइजेक्टिव है क्या ये? अगर मैं fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्या आ गया? इट मींस 1 1। डेफिनेशन चेक कर लिया हमने, ओके। Yes, sir. ये दिख रहा है, तो हर एलिमेंट की इमेज आपको देख भी सकते हो आप, हर एलिमेंट की इमेज यहाँ आएगी आपके पास। तो हर एलिमेंट इट इज मैपिंग थ्रू दिस। अब ऑन टू नेस की बात करें, हर एलिमेंट के लिए क्या आपको पास प्री इमेज मिलेगी? फॉर एवरी y belongs to E there exists x belongs to n such that fx is equal to y। ये बात तो ट्रू है। कोई एलिमेंट आप यहाँ बता दिए ऐसा जिसकी प्री इमेज ना हो। लीजिए कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर सोचिए, अगर आप 100 लेंगे तो 50 है, 1000 लेंगे तो 500 है, 10,000 लेंगे तो उसका हाफ। तो इट मीन्स व्हाट, एवरी एलिमेंट इन ई हैज अ प्री इमेज। तो ये क्या है? ऑन टू भी है। On to, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन दिस, क्योंकि दिस मैप इज, so fx is equal to 2x is bijective, is a bijective map. So there exists, there is a, you can write there is a 1 to 1 correspondence। 1 to 1 correspondence का मतलब ये होता है कि हर एलिमेंट को मैं करस्पॉन्ड कर सकता हूँ, 1 को 2 से,
2 को 4 से, 3 को 6 से, है ना। यहाँ पे इक्वल नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट n इज इक्वल टू e, आई विल नॉट से, है ना। लेकिन अगर किसी सेट की सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो जाए तो वी कैन से दैट इज अ इक्विवेलेंट, है ना। ये इक्विवेलेंट है सेट, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये वाला एरो बना के, है ना। इक्वल नहीं है, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, ये इक्विवेलेंट है आपस में, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। यानी कि ये सेट जो है इनफाइनाइट तो है, लेकिन अगर आप आगे सेट छोड़िए पढ़ेंगे तो इनफाइनाइट में भी टू चीजें होती है, काउंटेबली फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये काउंटेबली फाइनाइट है, काउंटेबली इनफाइनाइट है ना। इट इज कॉल्ड काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर आपको किसी भी सेट की सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मिल जाए तो उसे कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपको इनफाइनाइट सेट में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मिल सकती है, चाहे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, आपस में एक दूसरे से कम दिख रहे हो। ये ऐसे ही है कि इनफाइनाइट, अगर टू चीज इनफाइनाइट्स हैं तो इनफाइनाइट्स में यू कैन नॉट से कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है कि नहीं। Yes, sir. बस, तो इनफाइनाइट जैसे समुद्र, इफ यू हैव एन ओशियन, उसमें से आप चाहे 100 लीटर पानी निकाल दीजिए या 100 लीटर पानी डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा, ये जो है जहाँ फाइनाइट है, फाइनाइट में अगर मैं एलिमेंट बढ़ा दूं एक या कम कर दूंगा तो फॉरन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस खत्म हो जाएगी। देयर मस्ट बी सेम एलिमेंट्स इन डोमेन एंड सेम एलिमेंट्स इन कोडोमेन, ठीक है। इसका इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। यासिर रसूल, माइक म्यूट करो। Yes, sir. आपके बीच में डिस्टर्ब किसका, आपके वजह से हो रहा है, किससे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, बाइनरी ऑपरेशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बाइनरी ऑपरेशंस 1.5, बाइनरी ऑपरेशंस। किसी को पता है, एनीबॉडी नोस व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है, व्हेन यू हैव टू थिंग्स तो बाइनरी बोलते हैं ना। कंप्यूटर आपने पढ़ा, बाइनरी नंबर डिजिट्स, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 1, एम आई राइट। Yes, sir. तो बाइनरी ऑपरेशंस देखिए क्या कराएगा, बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है देखिए, जैसे यू यूज एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब ये बाइनरी ऑपरेशन है बेसिक, अगर मैं टू ले, है ना, ये ऑपरेशंस है। अभी बाइनरी की बात नहीं कर रहा, माइनस, डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस हैं। और आपने देखा कोई भी ऑपरेशन जब होता है तो किसके बीच में होता है, कम से कम आपको 2 एलिमेंट चाहिए। अगर आपको ऐड करना है तो आप कहेंगे 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, एक्स एंड वाई। आप एक्स प्लस वाई करेंगे तो एक नया नंबर मिल जाता है जेड। अभी डिपेंड करेगा एक्स वाई क्या है, अगर दोनों 0 है तो 0, अगर कोई नंबर है 1 + 2 तो 3, है ना। या मल्टीप्लाई करना है आपको तो भी कोई न्यू नंबर मिल जाएगा, या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो ऑपरेशन आप लगाते हैं सारे क्या होते हैं, ये यू आर ऑलवेज टेकिंग 2 नंबर्स एंड देन यू आर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस। ये तो होता है, जैसे मैं Z1 Z2 Yes, sir. क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट आ रहे होंगे, ये नहीं कि सेम आए। आप सेम नंबर लीजिए, ऐड करेंगे तो Z1 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे Z2, सब्ट्रैक्ट करेंगे Z3, है ना। तो आई नीड 2 नंबर्स, तो ये तो ऑपरेशंस है। देन व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में एक कंडीशन और लगा दी बस हमने। तो ऑपरेशन तो सिंपल, दिस इज ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब ऑपरेशंस है। तो सपोज यू हैव अ नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि 2 एलिमेंट चाहिए तो नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास। तो फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए ना। अगर एक एलिमेंट भी हो 0 ही होता तो 0 + 0 में ऐड कर सकता हूँ, 0 × 0 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, डिवाइड नहीं कर सकता, अलग बात है। कोई नॉन जीरो नंबर ले लूंगा तो मैं उसे ये भी कर सकता हूँ। तो कम से कम सेट में एक एलिमेंट तो होना जरूरी है, क्यों भाई, एक एलिमेंट कम से कम Yes, हो। sir. इसलिए हम लिखते हैं फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर एक भी एलिमेंट हो गया तो आप ये सारे ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं। तो फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट एनी फंक्शन
एनी फंक्शन, यहाँ फंक्शन कह रहा हूँ मैं, फ्रॉम A क्रॉस A to A is called a बाइनरी ऑपरेशन। ना इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे जितना भी मैं कुछ डिफाइन करूंगा वेक्टर स्पेस व्हाटएवर, वहां पर ये बाइनरी ऑपरेशन से ही डिफाइन करूंगा। बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, इसे मैं शॉर्ट में बीओ लिख दिया करूंगा, बीओ। तो क्या हुआ इसमें देखो, फंक्शन, तो फंक्शन तो है ही ए क्रॉस ए टू ए, यानी कि अगर आप दो एलिमेंट, अब ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे टू एलिमेंट्स होंगे आपके एक्स कॉमा वाई। ए क्रॉस से आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ जाना चाहिए, वो भी उसी ए में जाना चाहिए, ठीक। देन दिस विल बी अ बाइनरी ऑपरेशन। तो इफ यू हैव अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, जैसे आपके पास कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो आप कोई अगर ऑपरेशन लगाएं आर क्रॉस आर में, तो वो कहाँ आना चाहिए, आर ही में आना चाहिए। या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तो दिस शुड गो टू इन एन। इज इट क्लियर? अब अगर आप आर क्रॉस आर टू आर लेंगे तो एवरी ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये जो आपने ऑपरेशन करे थे, आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, है ना, उस पर चाहे एडिशन करिए, चाहे मल्टीप्लीकेशन, चाहे प्रोडक्ट, या रिजल्टेंट क्या आएगा, कोई रियल नंबर आएगा, है ना। डिवीजन में बस ये होगा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, ओके। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूं, तो यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे टू नेचुरल नंबर को, तो क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर z आएगा, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कोई नेचुरल नंबर आएगा, सपोज z2 यही बिलोंग करेगा। लेकिन इफ आई एम टेकिंग सब्ट्रैक्शन, तो क्या ये नेचुरल नंबर आएगा हमेशा? No, sir. ये डिपेंड करेगा